Good morning, students. Today we are going to start new topic, the applications of electric current. Okay. The very first application of electric current is electric iron. You all might know that whenever our clothes are crumpled, जब भी हमारे क्लोथ्स में बल पड़े हुए होते हैं तब हम इलेक्ट्रिक आयरन की हेल्प के साथ अपनी क्लोथ्स को आयरन कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, राइट। सब तो पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक करंट दी इलेक्ट्रिक आयरन है। ये सारिया एप्लीकेशंस बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ते। ਹੁਣ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। when you turn on the switch of the electric iron, it starts heating up. That means electric current is somewhere responsible for heating effect, right? That means electric current responsible है उस heating दे ਲਈ, क्योंकि जिवें ही तुसी switch on कीता ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ press ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣੀ start होगी, correct? तो write down topic ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, the applications of electric current, then write down first application electric iron. Start writing. Before we go to school, to attend some function, we ensure that our clothes are not crimped. We ensure that our clothes are not crimped. You can see the spelling from here. Crimped matlab bala wala. And for this we use an iron to straighten out those clothes, and for this we use an iron to straighten out those clothes. The question is why we use that? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ यूज़ क्यों करते हैं, या फिर वो किस तरह काम करती है, या फिर मैकेनिज्म की है, या फिर जिवें ही तुसी आयरन दा स्विच ऑन करते हो एकदम गरम क्यों हो जाती है ना? Well, write down, well, this iron is the most basic example of heating effects of electric current in our everyday life. ये सब तो बेसिक एग्जाम्पल है जिहड़ी क्लीयरली दिखा रही है कि जिवें ही तुसी इलैक्ट्रिक करंट ऑन कीता तुहाडी आयरन गरम होनी स्टार्ट होगी, which means electric current is responsible for this heating, and that heat is utilized by us in ironing our clothes, in straightening out our clothes ਜਿਹੜੇ कि crimped ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ठीक है बच्चे, पहली एप्लीकेशन क्लियर है। ਹੁਣ दूसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक हीटर एंड वाटर हीटर। ਹੁਣ ਇਹ भी इट्स क्वाइट क्लियर कि आप हीट की गल कर रहे हैं, इलैक्ट्रिक हीटर, दैट मीनस इलैक्ट्रिसिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, है ना। इलैक्ट्रिक हीटर दे विच की हुंदा है, इलैक्ट्रिक हीटर पानी नूं गरम कर दिंदा है। हुण वो हीट कित्थों आंदी है? वो इलैक्ट्रिक करंट सप्लाई हुंदा है, उत्थों उहदे कोल हीट आउंदी है ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
the water gets heated up, right? When these applications are in connection with the supply of electricity, they become hot but wires remain cold. अच्छा एक और चीज़ है, कल ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਐਂਡ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਸੀ, ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਟਰਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਟਾਰਟਸ ਫਲੋਇੰਗ ਇਟ and it reaches this electric heater, right? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈ that never becomes hot, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ hot ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। that means ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਇਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is of some insulator. This is your metal conductor wire and this is insulated by some insulator. That is why you never feel कि ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਗਰਮ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? अच्छा, इहदे विच नाइक्रोम हुंदा है। हुण नाइक्रोम की है? They consist of nichrome which has a high resistivity and hence higher resistance. Heat produced is directly proportional to resistance of the material through which the current flows. हुण resistivity, resistance, it might be new terms for you all, है ना? कीता होगा स्कूल टाइम दे विच, but रिफ्रेश कर दिन्ने आ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ कैपिटल आर नाल रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिस्टिविटी नू रो नाल रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर स्मॉल एल नाल रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर स्मॉल ए नाल रिप्रेजेंट करते हैं, देन रेडियस बस इन्ना ही बहुत है। एक बार तुहानूं इन्नी डिटेल च जाण दी लोड़ नहीं हैगी। बच्चा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की हुंदा है हुण तुहाडे दिमाग च आया रेसिस्टेंस की हुंदा है? रेसिस्टेंस हुंदी है हिंड्रेंस ऑफवर्ड। to electric current. What is resistance? हुण
ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਸੀ, ਰਿਵਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚੱਟਾਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦੂਗੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। that means that particular rock is hindering the movement of water। ਉਹ ਇੱਕ obstacle ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ ਵਿਦ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਰਿਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਬਸਟੀਕਲ ਸੀ, ਚੱਟਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਦ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫਰਡ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਆਈ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾय कैपिटल आई, राइट। अच्छा, आ होगी अपनी रेसिस्टिविटी, आ हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, आ हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। वो भी एक बार रिवाइज कर लो की सी। सपोज आ तुहाडा कंडक्टर है, ठीक है। जिन्नी इहदी लेंथ है दैट इज़ रिप्रजेंटेड बाय स्मॉल एल। जिन्ना इहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है मतलब कि आ वाला दैट इज़ रिप्रजेंटेड बाय स्मॉल ए। तो जिहड़े भी मटीरियल का बनया होया जिन्नी उहदी रसिस्टिविटी है दैट इज़ द रसिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है बच्चे। हुण रसिस्टेंस पे बेस्ड ना मल्टीपल चॉइस बहुत सारे आउंदे हैं। जिवें तुहानूं क्वेश्चन आया, सपोज लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। आपां की कीता, आपां अपने कंडक्टर दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन डबल करता। तो वो पूछ रहे हैं तुहाडा न्यू रसिस्टेंस की होगा। जो तुसी अपने न्यू रसिस्टेंस को निकालना है तो तुसी आही वाला फॉर्मूला एक बार लिखना है कि दिस इज योर ओल्ड रसिस्टेंस। हुण न्यू निकालना है, आपां न्यू लई आपां की करांगे, जिथे अपने कोल एक स्मॉल ए सी ना, हुण आपां करता डबल। डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए। हुण आपां ए दी जगह ते 2 टाइम्स ऑफ ए पुट कर देंगे तो ए वाले रसिस्टेंस नूं आपां आर डैश लै लांगे। ठीक है बच्चे। जदों वो कह रहे हैं कि तुहाडे कंडक्टर दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन डबल हो गया एंड यू हैव टू फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस, then what will you do? You will write the formula again that R is equal to rho L upon A. Then you will write new resistance that is R dash is equal to rho L upon 2A. Why? क्योंकि उन्हें कैसे twice हो गया, डबल हो गया। ठीक है। हुण तुसीं की देखोगे कि इस चो जे तुसीं 1/2 बाहर निकाल लो ना, पिछे जिहड़ा रह जाऊगा दैट इज़ योर ओल्ड रसिस्टेंस रो एल अपॉन ए, है ना। दैट मीनस तुसी इत्थे लिख सकते हो 1/2 आर, दैट मीनस आर डैश इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आर। मतलब जिहड़ा तुहाडा नवा रसिस्टेंस आऊगा वो पुराने रसिस्टेंस का हाफ होगा। मतलब जे तुसी एरिया इनक्रीज कर रहे हो तो तुहाडा रसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चे। दूजी तरह का मल्टीपल आ सकता है कि सपोज नोट डाउन हो गया ना ये, ओके चलो इधर कर लेने।
सपोज कर लिया कि तुहानू क्वेश्चन आया है कि लेंथ जिहड़ी है वो 4 टाइम्स होगी, जिहड़ी नवी लेंथ उन्होंने दिती है कंडक्टर की वो 4 टाइम्स होगी, ठीक है। फिर तुसी इहनू किस तरह सॉल्व करोगे? पहला तुसी लिखोगे तुहाडा ओल्ड रजिस्टेंस की सीगा, रो एल अपॉन ए सीगा, है ना। फिर तुसी लिखोगे न्यू रजिस्टेंस, न्यू रजिस्टेंस की आ जाएगा जिथे तुहाडा तुसी स्मॉल एल लिखा सो तुसी लिखोगे 4L, क्योंकि वो लेंथ 4 टाइम्स होगी। बाकी सारा कुछ सेम। हुण इत्थे ध्यान नाल देखो, तुसी जे इत्थों 4 कॉमन कढ लो, पिछे तुहाडे कोल सेम रजिस्टेंस रह गया पुराने वाला, है ना। दैट मीनस ए हो गया 4 टाइम्स आर, जोड़ा तुहाडा न्यू रजिस्टेंस सी आर डैश वो आ गया 4 टाइम्स आर। मतलब जे तुसी लेंथ नू इनक्रीज कर रहे हो 4 टाइम्स तो तुहाडा रजिस्टेंस भी 4 टाइम्स इनक्रीज हो जाऊगा, ठीक है बच्चे। दिस वे यू कैन सॉल्व। एक होर टाइप होंदी है वो भी दस दिनी हाँ। हुण उन्होंने कहता कि तुहाडे कंडक्टर दा रेडियस डबल हो गया। क्वेश्चन च आ गया कि फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस इफ द रेडियस ऑफ योर कंडक्टर इज डबल। जे आ क्वेश्चन आ गया फिर तुसी किद्दां करोगे? हुण रेडियस किहड़ी क्वांटिटी विच इनवॉल्व होगा? एरिया दे विच। हुण इत्थे आपां गल कीती सी कंडक्टर नूं ड्रॉ करके कि आ सर्कुलर पार्ट आ, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ that means we need the formula for the area of circle, right? And the area of circle is pi r square, correct? ਹੁਣ pi r square suppose आप suppose किया अपना old area सी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ new area निकाल रहे हैं। new area निकालने लिए की करांगे? पाई रेडियस हो गया डबल, दैट मीनस r की जगह पे 2r पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है बच्चे? सौखा सी बहुत। एक बार दोबारा दस दिनी हाँ। रेडियस है, रेडियस डबल होया, रेडियस डबल होया मतलब रेडियस इज इन्वॉल्वड इन एरिया, करेक्ट? दैट मीन्स वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल। क्यों? क्योंकि अपना कंडक्टर जो सीगा उहदा जिहड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सीगा उस सर्कुलर सी, है ना। की लिखिया? ओल्ड एरिया की आ गया पाई आर स्क्वायर। उस तो बाद आप न्यू एरिया लिखांगे। न्यू एरिया दे स्मॉल आर की जगह पे 2r पुट करांगे क्योंकि तुहाडा रेडियस होया आ डबल, 2 टाइम्स होया आ। हुण इत्थों जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तुहाडे कोल आ जाऊगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 ते r दा जदों स्क्वायर करोगे आ जाऊगा 4 ते नाल r स्क्वायर। मैं पाई आर स्क्वायर नूं कंबाइन करके दिता। ध्यान नाल देखो ये तुहाडा पहला वाला एरिया है, 4 टाइम्स ये हो गया। दैट मीनस उन्होंने तुहानूं डायरैक्टली नहीं दिता, उन्होंने इनडायरैक्टली दिता है कि तुहाडा न्यू एरिया कितना आ 4A आ। हुण आ वाला 4A नवे रेसिस्टेंस ते पुराने रेसिस्टेंस दे विच पुट करो। आ सी तुहाडा पुराना रेसिस्टेंस, नवा रेसिस्टेंस किवें कढोगे? रो एल अपॉन 4A, क्योंकि 4A है नवा एरिया। 1/4 कॉमन काढ़ लिया, रह के गया पिछे पुराने वाला रेसिस्टेंस, दैट मीनस 1/4 आर। दैट मीनस नवा रेसिस्टेंस जिहड़ा हैगा वो पुराने रेसिस्टेंस का 1/4 हो जाऊगा जदों तुहाडा रेडियस डबल हो जाऊगा। क्लियर है बच्चे इत्थे तक? अच्छा, उस तो बाद है
ये ਆਪਾਂ देख ली इलैक्ट्रिक हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, उस तो बाद इलैक्ट्रिक बल्ब की एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन का नाम लिख लो, थर्ड एप्लीकेशन इलैक्ट्रिक बल्ब। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दी हाँ। रेडियस ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ डबल, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ रेडियस डबल हो जाएगा बच्चे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ रेडियस रिलेट करोगे ਉਹਦੇ एरिया ਦੇ ਨਾਲ। दैट मीनस ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ सर्कल ਦਾ एरिया निकालने की ट्राई करोगे। सर्कल ਦੇ एरिया ਦਾ फॉर्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, πr² ਹੁੰਦਾ है ना। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ रेडियस है, रेडियस डबल होया है, दैट मीनस पुरानी रेडियस की जगह तुम लिख दोगे 2r, करेक्ट। हम तुम 2r का जो स्क्वायर करोगे की आएगा 4 नाल स्मॉल r का स्क्वायर है ना। वो 4 स्मॉल r के स्क्वायर में जो तुम पाई नाल करोगे मल्टीप्लाई की आ जाएगा 4πr²। हम 4 के नाल जिहड़ा πr² है दैट इज द ओल्ड एरिया। दैट मीन्स यू कैन राइट न्यू एरिया दैट इज a डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स द ओल्ड एरिया, करेक्ट। उस तो बाद की करोगे जो तुहाडा पुराना रेसिस्टेंस सी की सी रो L/A, न्यू रेसिस्टेंस की आ गया रो L, तो जो तुहाडा न्यू एरिया है, न्यू एरिया मतलब 4a लिखता, यही वाली टर्म चो 1/4 कॉमन ले लिया, रह के गया रो L/A। दिस इज द ओल्ड रेसिस्टेंस एंड वी हैव पुट दैट वैल्यू हियर एंड वी गॉट r dash is equal to r/4 एंड हेंस वी कैन से जो रेडियस डबल होएगा तो तुहाडा रेसिस्टेंस जिहड़ा हैगा नवा रेसिस्टेंस तो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होके 1/4 रह जाएगा। क्लियर है बच्चे? चरणजीत क्लियर है हुण? उस तो बाद आप देखते हाँ इलैक्ट्रिक बल्ब। राइट डाउन अबाउट इलैक्ट्रिक बल्ब। द फिलामेंट ऑफ एन इलैक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट of an electric bulb consists of tungsten with a high melting point दोबारा रिपीट कर रही हैं, सुन लो। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन with a high melting point। you might be thinking tungsten की है, लिख देनी है मैसेज। ओके, it is clear। हाँ मैं क्या लिख रही थी, टंगस्टन। टंगस्टन इदा लिखो बच्चे। a filament is enclosed, नेक्स्ट लाइन है ये, a filament is enclosed in a glass envelope। A filament is enclosed in the glass envelope which is filled with nitrogen and argon gas, since the resistance of thin filament is very high, comma, the amount of heat production is large, same as the
same as the electric current, same as the electric current that flows through the filament, that flows through the filament next line, due to a large amount of heat production, due to large amount of heat production, the filament bulb becomes white hot. Hence the filament of bulb emits the light and heat. Hence filament of bulb emits the light and heat. ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਇਰ, है ना। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੰਗਸਟਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਗਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰੋ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਗਲੋਇੰਗ। ਇਹ ਗਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬ ਨੇ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, क्योंकि जोड़ा करंट है दैट इज प्रोड्यूसिंग हीट ऑल्सो, करेक्ट। so in this way we get light and heat from the bulb। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਬਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 4। Write down wires consisting of some materials, melt quickly and wires consisting of some materials melt quickly and break when large electric current passes through them
these wires are used for making electric fuses। तो पहला उन्होंने की किया कि जेडी वायर जिमें ਉਹਦੇ ਚੋਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ज़्यादा इलैक्ट्रिक करंट आवे वो मेल्ट हो जाती है। कहते इस तरह ਦੀਆਂ वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलैक्ट्रिक फ्यूज। क्यों? क्योंकि इस तरह की वायर ही ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा इलैक्ट्रिसिटी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचने तो रोक सकती है। हाउ दसदे हो भी, लिखो अगे। all the electric circuits in all the buildings consist of electric fuses। all the electric circuits in all the buildings consist of electric fuses। there is a maximum limit on the current which can safely flow through the circuit। कहते सारी दी सारी बिल्डिंग्स दे विच अजकल इलैक्ट्रिक फ्यूजेस होंदे हैं ते कहते इस वायर दी ना एक मैक्सिमम करंट लिमिट सैट की हुई होंदी है कि इस तो वध जे करंट आ गया तो तेनू मेल्ट होना है। समझ आई गल? वायर दी मैक्सिमम करंट लिमिट सैट की हुई होंदी है कि जे इस तो वध करंट आ गया पिछों तो यू हैव टू मेल्ट। जे तू मेल्ट हो जाएगी तो सारे दे सारे सर्किट्स टुट जाएंगे। किवें? देखो आगे। देन इफ बाय एक्सीडेंट current exceeds this limit, the wires may overheat and cause a fire। कहते जे बाय चांस इस तो ज़्यादा करंट सारे दे सारे एप्लीकेशंस तक पहुँच गया, सारे दे सारे एप्लीएंसेस तक पहुँच गया तो वो सारे एप्लीएंसेस दियाँ वायर्स इन्नियां हीट हो जाएंगियां कि उत्थे अग लगन का भी डर है। समझ आ रही है गल? लिखो अगे। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर it will blow out and break the circuit। it will blow out या फिर blow off। it will blow off and break the circuit। you might have seen fuses somewhat like this। fuse इस तरह का होंदा है कि तुसी इत्थों पकड़ के उन्होंने बाहर खिच लेंदे हो फिर विच पा दिंदे हो। इत्थे उहदे सॉकेट जा होंदा है जिहदे विच आपां वायर लगा दिंदे हां। करेक्ट? हुण जिहड़ी तुसीं वायर इहदे विच ला रहे हो वो वायर इदां दी ला रहे हो कि उहदा मेल्टिंग पॉइंट घट है। लेसर मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपां चाहते हैं कि जिवें ही इस फ्यूज कोल ज़्यादा करंट की वैल्यू आवे उवें ही ये फ्यूज मेल्ट हो जाए। जिवें ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा ये वायर विचों ब्रेक हो जाएगी। जिवें ये वायर विचों ब्रेक हो जाएगी जिस चीज़ च आपां इस फ्यूज नूं फिट कीता सी जिहड़ा दा सर्किट सी वो टुट जाऊगा। समझाई गल? जे बाय चांस कुछ एवें दा सर्किट सी है ना, सपोज आ सारा तुहाडा
घर ਦੇ ਐਪਲੀਐਂਸਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਐਂਸਿਸ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? These were the 4 applications of electric current. Now we have our next topic, telecommunication, key concept and applications. Write it down. Last topic of our syllabus, telecommunication, key concept and applications. तो पहला कम्युनिकेशन की है, टेली लाता आपका आगे। टेली तो नहीं याद आया कुछ? टेलीफोन, टेलीविजन, जिन्हों कि आपां टीवी ते फोन कहने आ। टीवी भी आजकल रेसिप्रोकेट हो गए, रेसिप्रोकेटेड टू LEDs एंड LCDs, करेक्ट? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਦਾ रेडियो। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਟਸ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਊ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ, ਤੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਊ? ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, फ्रीक्वेंसी। ਹੁਣ फ्रीक्वेंसी की है?
रेडियो की नोब देखी है घुमाने वाली स्टेशन होंगे इतने आज 101.1 FM 99.9 FM मतलब हुण आ फ्रीकुएंसी दियाँ वैल्यूज़ है कि तुसी नोब नूं घुमाओगे चैनल चेंज हो जाऊगा हुण वो चैनल चेंज किवें हो रहा है तुहाडे एटमोसफेयर दे विच तुहाडी सराउंडिंग दे विच बहुत फ्रीकुएंसीज़ दियाँ साउंड्स है जिवें कि तुसी इहनूं नोब नूं रोटेट करके 1.1 ते कीता दैट मीनस तुहाडा जिहड़ा रेडियो है दैट इज कैचिंग ओनली दिस फ्रीकुएंसी फ्रॉम द एटमोसफेयर समझ आई गल जिवें ही तुसी उस रेडियो की नोब नूं रोटेट किया इहदा मतलब की है कि तुहाडी रेडियो की नोब ने ओह वाली फ्रीकुएंसी तुहाडे एटमोसफेयर चों कैच कर ली क्योंकि तुहाडे एटमोसफेयर दे विच देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फ्रीकुएंसीज प्रेजेंट ताई जो तुसी इस नोब नूं रोटेट भी कर रहे होंगे उस टाइम भी एक नॉइस आ रही होंदी है कर है ना हुण जिहड़ी फ्रीकुएंसी ते उन्होंने बोलना रेडियो स्टेशन ने वेव्स छड्डियां होंदियां उही वाली फ्रीकुएंसी नूं कैच करेगा तो जो उत्थे कोई कुछ बोल रहा है उत्थे सुनेगा तुहानूं सेम इज द केस विद टेलीविजन एंड टेलीफोन मोबाइल का सेम है मोबाइल की अपनी फ्रीकुएंसी सेट होंदी है ठीक है बच्चे एंड इस प्रोसेस को की बोल रहे हैं फ्रीकुएंसी सिलेक्शन बोल रहे हैं फ्रीकुएंसी सिलेक्शन मतलब जे तुसी रेडियो की नोब नूं 101.1 FM ते कीता तां 101.1 वाली जिन्नियां भी फ्रीकुएंसीज होणगियां एक ही होगी वो फ्रीकुएंसी नाल दी नाल कॉन्टैक्ट विच आ जाऊगी समझ आई गल लिखो टेलीकम्युनिकेशन बारे लिखो कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ transmission of information communication is the act of transmission of information exchange of information can take place via this kind of networks exchange of information can take place via this type of networking to enable different computers, different televisions, different radios, different telephones to communicate हुण इहदे मेन 3 कंपोनेंट्स है कि किवें सिग्नल कित्थे जांदा वो देखते हैं हम
ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਡਰ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਿਗਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸੀਵਰ। मतलब जो तुहानू एग्जाम्पल देवां, सेंडर कौन हो गया? रेडियो स्टेशन। कम्यूनिकेशन चैनल की हो गया? जे तो वायर्स है तो वायर्स, जे वायर्स नहीं है तो तुहाडा एयर। रिसीवर कौन हो गया? की कहंदे उहनू? आई डोंट रिमेंबर इन पंजाबी, सो मैं इंग्लिश च लिखता ऑडियंस। जेड़ी ऑडियंस उन्होंने सुन रहे है, ठीक है बच्चे। हुण सेंडर का काम की है कि एक फ्रिक्वेंसी सैट करके उतों फ्रिक्वेंसी दियां वेव्स सेंड करनिया। कम्यूनिकेशन चैनल का काम की है, वो जिहड़ा सिग्नल सेंडर ने भेजिया है उन्होंने अपने आप चो ट्रैवल करन देना। रिसीवर का काम की है, जिहड़ी फ्रिक्वेंसी उन्होंने चाहिए है वो फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके वो सिग्नल नू लेना। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लो इनू। क्लियर है इत्थों तक? You can ask बच्चा if there is any doubt. हुण आपां ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਡਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। सेंडर की है तुहाडा इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, है ना। कम्यूनिकेशन चैनल च की हुंदा है? एक ट्रांसमीटर हुंदा है जो ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਨਲ। मतलब आ सारा कंबाइन होके आंदा है कम्यूनिकेशन चैनल दे विच। ठीक है, देन वी हैव ਇਹ वाली इन्फॉर्मेशन जो सी इनू यूज़ कौन कर रहा सी? यूज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब जी तुहानू ये ब्लॉक डायग्राम याद है तो यू नीड नॉट टू क्रैम एनीथिंग, तुहानू कुछ भी रट्टा मारन की लोड़ नहीं हैगी। यू कैन वेरी ईजीली टेल। क्लियर है बच्चे? लिखो ये तो बाद। In the communication system, transmitter is located at one place, comma, transmitter is located at one place, comma,
The receiver is located at some other place. The receiver is located at some other place. The receiver is located at some place, ब्रैकेट लिख लो, far or near. ब्रैकेट तो बाद separated from the transmitter, separated from the transmitter. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. तो पहले पॉइंट ने क्या कि जो ट्रांसमिटर ते जो रिसीवर है वो दोनों सैपरेट होंगे है. ट्रांसमिटर वो है जो सिग्नल नू भेजता है, रिसीवर वो है जो सिग्नल नू लैंदा है, चाहे नेड़े होन चाहे दूर होन. नेक्स्ट लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, depending upon the type of communication system, channel may be in the form of wires, or it may be wireless. Or it may be wireless. आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द पर्पस ऑफ द ट्रांसमीटर, द पर्पस ऑफ द ट्रांसमीटर इज टू कन्वर्ट message signal produced by the source of information, into a form suitable for transmission through the channel. उन्होंने ट्रांसमीटर का काम की किया है बच्चे. ट्रांसमीटर का काम की हुंदा है, आप बोल रहे हैं सपोज रेडियो स्टेशन पे बैठा कोई बोल रहा है, ट्रांसमिशन का काम की हो गया ट्रांसमीटर का कि ऑडियो सिग्नल नू कन्वर्ट कर देना इलैक्ट्रिकल सिग्नल दे विच. ऑडियो सिग्नल मतलब उत्थे जो भी बोल रहे हैं कोई कुछ, इलैक्ट्रिक सिग्नल मतलब उन्हें एक फ्रीक्वेंसी देती ताकि वो इस चैनल तो पास हो सके. समझ आया ट्रांसमीटर का काम की है. जो तुम बोल रहे हो दैट इज समथिंग नोन एज ऑडियो, दैट इज व्हाई आई मार्क्ड इट एज AS, दैट मीन्स ऑडियो सिग्नल. ऑडियो सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, that electrical signal which can be detected with some particular frequency. Correct? लिख लो इनो. AS is audio signal, and ES is electrical signal. ठीक है बच्चे. लिखो आगे, if the output of the information source
is non-electrical signal like voice signal transducer also converts it to electrical part. ट्रांसड्यूसर का काम भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि जे वो नॉन इलैक्ट्रिकल सिग्नल है तो उन्हें इलैक्ट्रिकल पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर ਦਿੰਦਾ है ट्रांसमीटर को, ठीक है। मतलब ट्रांसमीटर एंड ट्रांसड्यूसर आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। आगे लिखो, when a transmitted signal propagates along the channel, it may get distorted due to channel imperfection. कदे कदे तुसी सुनते हो जो रेडियो तो विच जेड़ा तुसी चैनल चलाते हो चैनल विच डिस्टर्बेंस होने लग जाती है, करेक्ट। वो चैनल विच डिस्टर्बेंस क्यों आती है? क्योंकि चैनल दे विच नॉइसी पार्ट आ जाता है, दो सिग्नल्स आपस विच टकरा जाते हैं ता आती है नॉइस, ठीक है बच्चे। आगे लिखो, the receiver reconstructs a recognizable form of original message signal for delivering it to the user of information. दोबारा सुन लो, रिपीट कर रही हूँ। The receiver reconstructs a recognizable form of the original message signal for delivering it to the user of information. User ਜਿਹੜੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ सिग्नल ਨੂੰ रिसीवर ट्रांसफॉर्म कर ਦਿੰਦਾ है। दैट मीन्स ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ट्रांसमीटर या ਤੁਹਾਡਾ ट्रांसड्यूसर ਸੀ that has converted this audio signal to the electrical signal। ਉਹ इलैक्ट्रिकल सिग्नल चैनल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पास होया। ਹੁਣ रिसीवर की करूँगा, रिसीवर इलैक्ट्रिकल सिग्नल ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ वॉइस ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर दूगा, ਦੁਬਾरा ऑडियो सिग्नल ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर दूगा ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ सिग्नल ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ वॉइस ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇ। क्लियर है? क्लियर है बच्चे ये पार्ट? आगे देखते हैं। अच्छा, हुन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी अपने को दो तरह के होंगे हैं। देखो टॉपिक बना लो उत्ते, टू बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट लिखो पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट वन लिखो पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट लिखो ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट, नाम तो ही क्लियर है।
पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक बंदा बोल रहा है दूसरा बंदा सुन रहा है, जिमें कि टेलीफोन, करेक्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब कोई सिग्नल रेडियो वालिया ने सेंड किया होया वो लखा लोग सुन रहे हैं, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। टीवी ते वीडियो दा ऑडियो दा सिग्नल मैच होके आ रहे हैं, लखा जना देख रहे हैं, है ना, दैट इज ब्रॉडकास्ट। लिखो, इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मोड, in point to point communication mode, communication takes place over a link between single transmitter and a receiver. Single transmitter and a receiver. Telephony is an example. Telephone is an example of such mode of communication. Telephone is an example of such mode of communication. Next लिखो, in the broadcast mode, there are large number of receivers corresponding to a single transmitter. पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट क्लियर है बच्चे? किसी को भी इतों तक कोई भी प्रॉब्लम होवे तो ही और शी कैन आस्क। हुण बेसिक टर्म्स है तुहाडे कोल, बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन है, टॉपिक बना लो, बेसिक टर्मिनोलॉजी। सब तो पहला लिखो सिग्नल। Signal, the information converted in electrical form and suitable for transmission is called a signal. Signals can either be analog or digital. कोई भी इंफॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ कि इलैक्ट्रिकल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्टेड है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, दैट इज नोन एज सिग्नल।
जिवें आपां रेडियो वाले की गल की सी, रेडियो वाला कुछ बोल रहे हैं, दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड दैट इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय द ट्रांसमीटर, राइट. Now the part which is transformed from one form to another, that part is known as signal. Okay. Then we have analog signal. Write down point number 2. The analog signals are continuous variations of voltage or current. ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ एनालॉग सिग्नल्स ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ कंटिन्यूअसली वेरीएबल ਹੁੰਦੇ ਹੈ. कंटिन्यूअसली वेरीएबल मतलब ਉਹ स्ट्रेट लाइन 'ਚ नहीं ਹੁੰਦੇ, वेरी हो रहे ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ डिजिटल सिग्नल्स ਹੁੰਦੇ ਹੈ, डिजिटल सिग्नल्स की दो ही वैल्यूज़ होंगी है, या तो 0 या फिर 1. डिजिटल सिग्नल की उस तो अलावा कोई वैल्यू नहीं होती. पर जिहड़े तुहाडे एनालॉग सिग्नल्स होंगे उन्हां दियां काफ़ी वैल्यूज़ होंदी है, क्योंकि वो वेरीएबल होंगे. पर डिजिटल वाले फिक्सड होंगे है, या 0 वैल्यू या 1 वैल्यू. डिजिटल सिग्नल्स का लिखो. डिजिटल सिग्नल्स आर दोज which can take only two values, either high or low. Either high or low. High ਦੇ ਨਾਲ ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ 1, low ਦੇ ਨਾਲ ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ 0. either high or low. low ਦੇ ਨਾਲ ब्रैकेट 'ਚ लिख लो 0. उस तो बाद लिखो नॉइस. नॉइस की होंदी है जो तुसी चैनल नूं चेंज कर रहे हो उन्हें भी सारे कर, दैट इज द नॉइस. लिखो नॉइस refers to the unwanted signals that tend to disturb the transmission and processing of message signals in a communication system. I repeat, noise refers to the unwanted signals that tend to disturb the transmission and processing of message signals in a communication system. Noise की है सारे दे सारे अनवांटेड सिग्नल्स जिहड़े कि ट्रांसमिशन नू डिस्टर्ब करते हैं, ट्रांसमिशन नू ट्रांसमिट होने तो कुछ ना कुछ हिंडरेंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नॉइस. अगे लिखो transmitter. A transmitter processes the incoming signal. Transmitter processes the incoming signal so as to make it suitable for transmission through the channel.
फॉर ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल। ट्रांसमिटर का काम की है सिग्नल ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ट्रांसफॉर्म कर देना कि वो अपने चैनल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पास हो सके। सिग्नल ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ट्रांसफॉर्म कर देना कि वो अपने सिग्नल चैनल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पास हो सके। ठीक है बच्चे? उस तो बाद लिखो रिसीवर। रिसीवर the receiver extracts the desired message signals from the received signals so as to make it suitable a receiver extracts the desired message signals from the received signals at the channel output. You have to write this. A receiver extracts the desired message signals from the received signals at the channel output. तो ਤੁਹਾਡਾ receiver ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? receiver ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਸੀ ਰਿਸੀਵਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ यूज़र यूज़ कर सके। ठीक है बच्चे? समझ आ रही है गायल? आगे लिखो अटेनुएशन। स्पेलिंग लिख लो ATTENUATION। I repeat ATTENUATION अटेनुएशन। हुण अटेनुएशन की हुंदा है? जो तुसी सिग्नल छड्डिया इत्थों इनफॉर्मेशन सोर्स तो और ट्रांसमीटर कोल गया, फिर चैनल कोल गया, फिर रिसीवर कोल गया, वो किते लास्ट पे जाके उत्थे आया रिसीवर कोल, इनफॉर्मेशन कोल, है ना, यूज़र ऑफ इनफॉर्मेशन कोल। दैट मीनस की होगा कोई चीज़ उत्थों तुसी किसी चीज़ में धक्का मारिया उत्थे तक आंदी आंदी स्लो हो जाएगी जमा, है ना, या इट इज़ पॉसिबल कि वो सिग्नल रस्ते च डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, है ना। टू अवॉइड दिस अपा आज का प्रोसेस में क्या ना भी उत्थों तुसी सिग्नल में छड्डिया उत तक आंदे आंदे वो वीक हो गया बहुत, ये वाले प्रोसेस में बोलते हैं अटेनुएशन। की बोलते हैं? अटेनुएशन। लिखो की होंगी अटेनुएशन? द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ of a signal while propagating through the medium is known as attenuation। ਜਿਹੜੀ सिग्नल ਦੀ स्ट्रेंथ ਵਿੱਚ लॉस ਹੁੰਦਾ है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं अटेनुएशन। ठीक है बच्चे? क्लियर है? ਇਹ लॉस ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ सिग्नल ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ताकि ਤੁਹਾਡਾ सिग्नल प्रॉपरली ਉੱਥੇ तक पहुँच पाए जिन्ना भी उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल करना है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट एम्पलीफिकेशन।
amplification is necessary. Amplification is necessary to compensate for the attenuation. Amplification is necessary to compensate for the attenuation of the signal. The attenuation of the signal in the communication systems. In the communication systems. Amplification क्यों की जाती है? ताकि जिहड़ी attenuation हुई है वो खत्म हो जाए, वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है बच्चे? उस तो बाद लिखो रेंज, RANGE रेंज। रेंज की होंदी है, लिखो it is the largest distance between a source and a destination, up to which the signal is received with a sufficient strength. I am repeating it. Range की है, it is the largest distance between a source and a destination up to which the signal is received with sufficient strength. ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि sufficient strength मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ सिग्नल ਉੱਥੇ तक ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल क्लीयर सुनाई दे रहा है। उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਾ भी डिक्रीज नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ स्लो सुनाई दे रहा है या कुछ नॉइजी है। नो, रेंज की होंदी है वो वाला मैक्सिमम डिस्टेंस ਜਿਹੜੇ डिस्टेंस तक ਤੁਹਾਨੂੰ सिग्नल ਤੁਹਾਡਾ क्लीयरली सुनाई दे रहा है। ठीक है बच्चे, लिखो आगे। Modulation, write down modulation, MODULATION, modulation। ਹੁਣ modulation की होंदी है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ सिग्नल है, ਜਿਹੜਾ सिग्नल इत्थों इंफॉर्मेशन सोर्स तो गया है, ਉਹ वाले सिग्नल की जो फ्रीकुएंसी घट है बाय चांस, तो ਉਹ वाले सिग्नल ਨੂੰ एक नवे सिग्नल नाल मैच किया जाऊगा। वो नवा सिग्नल इस तरह का होगा कि उसकी फ्रीकुएंसी बहुत ज़्यादा होगी। वो नवे सिग्नल नाल वो घट फ्रीकुएंसी वाले सिग्नल नू मिलाया जाऊगा ताकि वो जिहड़ा इंफॉर्मेशन सोर्स का सिग्नल सी वो तुहाडे यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन तक क्लीयरली पहुँच जाए। मॉड्यूलेशन की है, मिक्सिंग है दो तरह के सिग्नल्स की। एक है जो वेव तुहाडी इंफॉर्मेशन सोर्स दे रही है, दूजी है कैरियर वेव। उस वेव को आप कैरियर वेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो तुहाडे लो फ्रीकुएंसी वाले ऑडियो सिग्नल को कैरी करके अगे तक लेके जाती है जिथे तक वो जाना चाहता है उतों तक। मॉड्यूलेशन क्लियर है बच्चे? लिखो the original low frequency information, the original low frequency information cannot be transmitted to long distances because of various reasons. Therefore
at the transmitter information contained in low frequency message signal is mixed on या mixed with a high frequency sorry, mixed with a high frequency wave which acts as a carrier wave. This process is known as modulation. This process is known as modulation. Next point लिखो demodulation. Demodulation स्पेलिंग वही है, डी ला दो बस अगे, DEMODULATION, डीमॉड्यूलेशन. डीमॉड्यूलेशन की है द प्रोसेस ऑफ recovery of information from the carrier wave at the receiver is termed as demodulation. This is the reverse process of modulation. That's all बच्चे. एक बार तुहानू बोर्ड ते एक्सप्लेन कर दिंदी हां मॉड्यूलेशन ते डीमॉड्यूलेशन की है. जिन्हों थोड़ा बहुत भी डाउट है क्लियर हो जाऊगा. आ तुहाडा सपोज सी सिग्नल ऑडियो सिग्नल एच तुसी प्लस की कैरियर वेव तुहाडी कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा सी तुहाडे कोल आ गया कुछ इस तरह का क्योंकि तुसी मिक्सिंग करती इस तरह का पैटर्न आ गया.
ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। लाइक दिस, ये होगी मॉड्यूलेटेड वेव। तो ये प्रोसेस हो गया मॉड्यूलेशन। हुण ये कैरियर वेव, आ कैरियर वेव सी तुहाडी, ये कैरियर वेव तुहाडे ऑडियो सिग्नल नू लैके जा रही है। ये दोनों आपस हो गए मिक्स, तो इत्थे ये चैनल दे विच है। उस तो बाद जिवें ये रिसीवर कोल आए, रिसीवर कोल जाके होगी डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन मतलब सिग्नल तुहाडा हो गया अलग, तो तुहाडी कैरियर वेव होगी अलग। एंड तुहाडे यूजर ऑफ इनफॉर्मेशन ने उस चो ऑडियो सिग्नल नू एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है बच्चे, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। क्लियर है बच्चे टॉपिक्स? किसी को भी कितने भी कोई भी डाउट है तो he or she can ask. I am waiting for 2 to 3 minutes. You can ask me in the chat box. Okay, so everything is clear to everybody? So बच्चे, this was our last lecture. So wish you very best of luck for your PCS exam. बहुत बहुत best wishes. Hope to see you all soon again. Okay? Not in case of PCS, in some other exam. Okay? Perform well. God bless you all. Thank you.